तो क्या ऐसा होता है कि अगर जो स्पिरिचुअली आगे हैं तो उनको कोई भी चीज इफेक्ट कम करता है, ये सारी चीजें, ऐसा होता है? 100% होता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई धर्म की बात फिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी दिमाग को ठंडा कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, जो हम साइकोलॉजिकल वे में किसी का अगर काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। सपोज आप देखिए गीता में अर्जुन को प्रॉब्लम हुआ था कुछ, ठीक है। जब when he was going to fight, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, he was having some fear, lot of fear. तो कृष्णा ने उसका काउंसलिंग किया था, and that process is called गीता. That is written in गीता. तो सेम थिंग अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम चले जाएंगे, वहाँ पे भी सेम है, काउंसलिंग सिस्टम सेम है, ठीक है। जो टोटल कुछ भी कोई भी रिलीजियन का, ठीक है। जैसे आप क्रिश्चियनिटी में आप देख सकते हो कि सेवन सिन है वहाँ पे, वो बोलते हैं 7 सिन है, होता है वहाँ पे। तो हमारे हिंदू में भी 6 रिपु कहते हैं हम उसको, जो काम क्रोध लोभ कहते हैं ना, माया। यस। तो ये सब आप हैंडराइटिंग से भी आप जान सकते हो, देख सकते हो, ये कैसे कैसे आप कोरिलेट कर पाओगे। अंडरस्टूड? So this is coming under spiritual graphology. So you are going to take that as a separate class or something? That is included in our session. That is included in our मतलब बैच में जो होता है वहाँ पे include किया गया है मेरा, और वहाँ पे मैं करवाऊँगा। That is in our research program. Research program. Okay. Okay. And you are there. I'll let you know. You don't worry. Okay. Thank you. Thank you so much. Got this. Okay. Hello. Good evening all. Good evening, sir. Yes. Good evening, Ankita, Shalu ma'am, Sharmishta ma'am. Good evening, sir. Good evening, Shivraj sir. Good evening, sir. Good evening. সেটের উপরে ডিপেন্ড করে। Lakshmi Sri, how are you? আমার আগের ফোনটা আবার এরকম। Yes, sir. I'm fine. সেটের উপরে ডিপেন্ড। Okay. Donna Hassan, I am absolutely fit and fine. যেটা হচ্ছে না কি করা যাবে? Donna, ma'am, তো ভালো আছি। তুমি নাও না স্ক্রিন। Vandana ma'am. আটটা বেজে চলছে, রেকর্ড হচ্ছে। Archana ma'am. Yes. রেকর্ডিং আমার 4 GB খেয়ে নেবে। তাহলে স্ক্রিন ভিডিও করে নেব না। स्क्रीन वीडियो नहीं, स्क्रीन शॉट। तो कैन वी स्टार्ट? एक्चुअली हम लोगों का आज का सेशन है किसके ऊपर? फ्रॉइड का साइको एनालिसिस या साइको डायनामिक। जो কিভাবে বলেছিস তুই শট না, তুই তো জানিস। मैं पहले बता देता हूँ सबको, ये यहाँ पे बहुत लोग हैं जो साइकोलॉजी तो तुम्हें रैंडमली मेरे যখন ইচ্ছে হবে। साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत लोग हैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड भी नहीं है। तो ऑब्वियसली आई मस्ट लेट यू नो कि मैं बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल टर्म नहीं यूज करूंगा, एकदम बेसिक से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बेसिक से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो अनुपमा मैम। Hello, Tamal. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Very good evening to everyone. Good evening. Let's continue. Yes, Tamal, please continue. Sorry to disturb you. No ma'am. Thank you. Okay. So I hand over to Shampidi ma'am. She came to us and she will let you know all this everything in detail. And उसके बाद मैं ग्राफोलॉजिकली वो कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा। आप जरा देख लीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। Thank you, Shampidi ma'am. You can start. Okay, I'll let you know. Good evening, everyone, and thank you, Tamal sir, once again. It's an honor to be here. Welcome to all the participants, and it's really wonderful to see all of you here. Thank you, ma'am. We enjoy your sessions. Thank you so much. So आज का टॉपिक है सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। टॉपिक थोड़ा लेंदी है, तो हमारी ये कोशिश थी कि ये मेनली 2 या 3-5 वीक विल ट्राई टू कवर अप द होल ऑफ इट। So let's get started with Sigmund Freud's psychoanalytic theory.
सिगमंड फ्रॉइड का नाम शायद आप सबने सुना होगा। अगर हम साइको एनालिसिस की बात करें, सबसे पहले जो नाम हमें याद आता है that is Sigmund Freud. He was born in the year 1856 in Moravia, which is now located in Czech Republic, and he died of cancer in 1939. He was an Austrian neurologist and he developed a new field known as psychoanalysis. He developed this concept of psychoanalysis totally based on his clinical trial mainly with the patients of hysteria, along with his physician friend Joseph Breuer. Therefore, he is also considered to be the father of psychoanalysis. So, what do we understand by the term psychoanalysis? Psychoanalysis is a set of theories and also therapeutic techniques that deals with the unconscious mind, which together forms a treatment for mental disorder. Therefore, Freud's psychoanalytic theory is described into three main headings: structure of personality, dynamics of personality, and third one is development personality. So let me tell you about a little bit about personality. The word personality has been derived from the Latin word persona, and it means mask, which the actors wear to change their appearances. So if we define personality, it is the unique internal and external aspects of a personal character that influences their behavior in different situations. So if we can do the next page. Moving forward, Freud divided structure of personality into two models: topographical model and structural model. So first we will discuss about topographical model or the state of consciousness. Freud's topographical model represents the configuration of our mind, and he believed that mental functioning can be described into three states of consciousness. First one, conscious mind, यानी कि चेतन मन. Second is preconscious or subconscious mind, अवचेतन मन. And the third one is unconscious mind, अचेतन मन. Freud correlated human mind to an iceberg. So we can see that in the picture. So the upper layer of the iceberg represents our conscious mind. It lies just above the surface of water, like the tip of an iceberg, and it occupies 10% of our total psyche. Our conscious mind comprises of our thoughts and perceptions. So conscious mind हमेशा aware रहता है. हमारे मन में जो थॉट्स एंड आइडियाज आ रहे हैं, हम आसपास की जो चीजें देख रहे हैं और जितने भी विचार हैं, ये सब हमारे चेतन मन से जुड़ी हुई है. हमें पता है हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं. For example, like we are aware that we are attending a graphology webinar या कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, हमारे बीच क्या बातचीत चल रही है, ये सब हमारे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है. नेक्स्ट इज ठीक उसके नीचे का पोर्शन है सबकॉन्शियस माइंड. यहाँ पर जो चीजें होती है एट प्रेजेंट हमें वो याद नहीं रहती है, पर अगर हम अपने दिमाग में जरा भी जोर डालें तो तुरंत हमें उससे सतह पर ले आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, वहाँ आपको कोई बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, आपको फेस भी फेमिलियर मालूम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाने से आपको तुरंत याद आ जाता है कि ये पर्सन आपके
ऑफिस के एक्स कलीग थे। दैट मीन्स ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट था और इसीलिए आपने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया और अपने सतह पर ले आए। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक पास ऑन कर सकते हैं और वापस कॉन्शियस माइंड में उस इंफॉर्मेशन को भी डाल सकते हैं। सो इट्स अ ट्रू एंड फ्रो passage from a conscious to preconscious mind. To be precise, our subconscious mind stores all types of information which can be easily brought to the level of consciousness at a moment's notice whenever required. আমার ডায়েরি রাখা Our preconsciousness mind consists of memories and stored knowledge, as shown in the given figure, and it comprises of 10 to 15% of our allotted human ফোনের সিস্টেমে mind. এরকম হবে না तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड और ये हमारे ह्यूमन माइंड का मेजर पोर्शन है। इसमें हमारी कुछ কোনো इंस्टिंक्टिव দরকার নেই একটা बिहेवियर কাজ है, করছি ঠিক আছে हमारी দুটোবার बहुत করতে सी दबी हुई না তুমি इच्छाएं, একবারে দেখতে পাচ্ছ আমি তো भावनाएं, জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি even আমি secret তাকে টিউশন মারার জন্য আরো জাগরুকতা যুক্ত আছে বনি ওরা আছে স্ক্রিনশট বনি unfulfilled আছে desires, বনিতা ফোনে many চালিয়ে of দিয়ে which are কাজ also করছে related to sex and aggression. हमें खुद भी একটা ये পেছনে नहीं কজনকে पता লাগাচ্ছি होता যে है হচ্ছে कि ये सब हमारे আমি তাও করে अचेतन দিচ্ছি मन বলে में ভাববো না दबी তাও हुई है। করতাম না এই যে क्योंकि ঝাঁঝরা इमोशंस हम बाहर की मैंने दुनिया एक बार को screenshot नहीं देखा। दिखाते हैं, कभी नहीं बता सकते हैं, पर अननोइंगली कभी कभी ये हमारे बिहेवियर में शो हो जाती है। ये हमारे ड्रीम्स में भी कभी कभी दिखाई देती है या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में भी नजर आती है। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा वेटेज दिया क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड बहुत हद तक हमारे पर्सनालिटी को कंट्रोल करती है। So let me give an example of like many incidents during childhood, like child abuse or any kind of sexual abuse during childhood can be repressed in unconscious mind, which in turn affects the behavior during childhood. So this is all about our conscious, preconscious and unconscious state of mind. Over to you, sir. थैंक यू मैम। यस सो जैसे फ्रॉइड का एक्चुअली थ्योरी ये 3 स्टेज में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी फर्स्ट वन, and second one dynamic of personality, and third one is development of personality. So as you know, we all are so much interested about development of personality. Personality कैसे develop होता है वो तो सब ये हर किसी का क्वेश्चन होता है, and that is very interesting. तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी ये क्या होता है, एंड उससे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ये पर्सनालिटी का ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कैसा है। सो ये स्ट्रक्चर को सबसे पहले फ्रॉइड ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक होता है टोपोग्राफिकल मॉडल एंड देन डायनामिक मॉडल और स्ट्रक्चरल मॉडल। तो ये टोपोग्राफिकल मॉडल का मतलब क्या होता है, तो इसमें 3 चीज होता है, एक होता है हमारे ब्रेन को या हमारे माइंड को। एक्चुअली माइंड होता कहाँ है, कोई बता सकता है माइंड होता कहाँ है? माइंड का कोई अगर आप ऑपरेशन करोगे मेरे ब्रेन को कभी पर कोई माइंड जैसा कुछ नहीं निकलेगा। तो माइंड कहाँ पे होता है? माइंड होता है हम लोगों का जो एंडोक्राइनल ग्लैंड होता है, वहाँ पे जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो हमारे गट में आ जाते हैं उस हार्मोन। उसके बाद नया नया फीलिंग्स मेकिंग होता है, दैट इज कॉल्ड माइंड। अंडरस्टूड? तो ये दिस इज कॉल्ड ओनली माइंड। लेकिन अब देखो ये माइंड में क्या क्या चलता है। पहली बात तो ये है हम इसमें थोड़ा एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज मेमोरी। मेमोरी मीन्स सेंसरी मेमोरी होता है हम लोगों का, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोज आर डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है, जो नया है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इजी करके बता देने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली जो हम लोगों का कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरा बात सुन रहे हो, दैट इज आवर कॉन्शियस माइंड। आप कॉन्शियसली सुन रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हम लोगों का कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का मैं हैंडराइटिंग से भी कोऑर्डिनेट कर देता हूँ आपको। जैसे एक सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन।
Is it visible to all? So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है। कॉन्शियस माइंड, जैसे मैं आपसे हर वक्त बातें कर रहा हूँ, आपका ध्यान यहाँ पे है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड को आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि हैंडराइटिंग से कि ये होता है हम लोगों का मेन बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, जो जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इज इट? कोई आप देखो, आपका नाम कुछ भी हो, आप अगर मेन बॉडी नहीं करोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये होता है हम लोगों का कॉन्शियस माइंड। एंड मेन बॉडी मीन्स कोई अगर इस तरह से प्रिंट लिखता है तो ये भी कॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड अगर कोई राइटवर्ड डायरेक्शन मतलब थोड़ा राइट साइड स्लांटेड हैंडराइटिंग, जिसको आप इटलिक कहते हो जनरली। जैसे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये राइटवर्ड डायरेक्शन हो रहा है ना। राइटवर्ड मतलब 90 डिग्री से थोड़ा राइट साइड में जा रहा है, तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन वाला जो हैंडराइटिंग होता है, तो ये हम लोगों का कॉन्शियस हैंडराइटिंग हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। एंड इसके साथ किसी का अगर राउंड शेप, हैंडराइटिंग का अगर शेप आप देखोगे, मतलब ये जो शेप होता है हैंडराइटिंग का, ये शेप अगर राउंडिश फॉर्मेशन में होता है, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस हैंडराइटिंग। अंडरस्टूड? अगर किसी का हैंडराइटिंग का शेप लेटर 5-7 लेटर से हम किसी की साइज एंड शेप देख सकते हैं। लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, ये 7 लेटर अगर राउंडिश फॉर्म में आता है तो वो बहुत कॉन्शियस हैंडराइटिंग होता है। एंड ऑब्वियसली मीडियम साइज अगर बहुत बड़ा ना हो या बहुत छोटा ना हो, तो नॉर्मली अगर हम लिखेंगे मीडियम साइज, दैट इज वेरी कॉन्शियस हैंडराइटिंग। एंड स्टैंडर्ड वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के गैप अगर नॉर्मल होता है तो दैट इज conscious state of mind, that indicates the state of conscious state of mind. Understood all of you? And next हम आएंगे subconscious state। subconscious mind एक्चुअली हमारा जो माइंड होता है, ये कॉन्शियस माइंड होता है 10%, बाकी टोटल 10 to 15% होता है ओनली सबकॉन्शियस माइंड पार्ट। तो ये सबकॉन्शियस पार्ट कौन सा होता है? सबकॉन्शियस पार्ट होता है, जैसे आप देख लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे H लिखा है और मैंने यहाँ पे Y लिखा है, ठीक है। तो H एंड Y ये दोनों प्रिंट हो गया, मतलब मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ये आपको मिनिमम H एंड Y लिखने के लिए आपको ये लिखना ही पड़ेगा, इजंट इट? तो ये होता है आपका कॉन्शियस पार्ट। एंड सबकॉन्शियस पार्ट क्या होता है? सबकॉन्शियस पार्ट मतलब कुछ ऐसा इमोशन अगर आप ऐड कर देते हो वहाँ पे, तो कुछ इमोशन मतलब जो इमोशन होता है हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में, दैट इज आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से हम लोगों का सबको इमोशन ऐड कर दिया तो ये हो गया हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड वाला पार्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये लुक जो होता है कहीं पे भी अगर आप कोई इस तरह से भी लिखता है, यहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड ही हम दिखाता है। ये अगर किसी का हैंडराइटिंग 100% जो स्लांट के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने कहा, स्लांट अगर किसी का ए स्लांटेड हैंडराइटिंग, ए स्लांट मींस 90 डिग्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। तो किसी का अगर 90 डिग्री वाला हैंडराइटिंग जो होता है वो भी आपका सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड इंडिकेट करता है, सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस जिसको आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड किसी का हैंडराइटिंग अगर बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो जाते हैं, स्क्वीज शेप, ठीक है, स्क्वीज शेप मतलब सपोज इस तरीके से शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये राउंडिश नहीं है, ये स्क्वीज्ड हो गया, ठीक है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इंडिकेट करता है, ठीक है, ये स्टेट इंडिकेट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सपोज किसी का देखो इस तरीके से अगर किसी का है तो इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है उसको, एंड उसको वो याद है
ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए हमारे माइंड में कुछ ऐसा बात होता है जो हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, एंड कोई कोई बात हम लोगों को डिस्टर्ब ही नहीं करता। अंडरस्टूड? तो जो बात हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, मतलब मुझे बार बार याद आ रहा है, मुझे बार बार याद आ रहा है, तो दैट इंडिकेट्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हम लोग अगर इस तरह से जी लिखते हैं, एंड किसी का अगर लेफ्ट साइड का जो मार्जिन होता है, लेफ्ट साइड का मार्जिन होता है, वो अगर किसी का वेवी होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका बॉडी इज नॉट इन हिज कंट्रोल। ओके, बॉडी एंड माइंड ठीक से, ठीक है। तो ये होता है, हम लोगों को डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा, एंड कभी कभी और भी कई सारे हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो, नैरो लेफ्ट मार्जिन, किसी का अगर लेफ्ट मार्जिन बहुत ज्यादा नैरो होता है, बहुत ज्यादा, मतलब जो पेज होता है, पेज के करीब से शुरू करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत होता है, बहुत कुछ देख के उसने बड़ा हुआ है, ठीक है, उसका अटैचमेंट भी ज्यादा होता है ओरिजिन के साथ, तो उसका उसको सब कुछ याद है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूल गया सब कुछ, जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का सबकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस माइंड का स्टेट होता है, ये पोर्शन, ठीक है। एंड इसके साथ और भी देख सकते हो, किसी का, मैं यहाँ पे ड्रॉ शायद नहीं कर पाऊंगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ। ये वाला पोर्शन, ये एंडिंग पॉइंट वाला पोर्शन अगर बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, शार्प, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पेन फ्लिक जिसको हम कहते हैं, और स्लैश की जैसा आ जाता है, तो वो भी हम लोगों के बॉडी के ऊपर डिस्टर्ब करता है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। वो भी हम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड का ही स्टेट हम बताते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप देखो अनकॉन्शियस माइंड कैसे प्ले करता है। अनकॉन्शियस माइंड मतलब जो आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका है, लेकिन आपको वो डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वही आपका कैरेक्टर मेकिंग करेगा। सपोज देखिए, हो सकता है हो सकता है मैं बहुत बहुत छोटा हूँ, 2-3 साल से मैं देखता हूँ, जो भी मैं अपने पापा से कहता हूँ मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी मेरा नेचुरल डिजायर है, उसने कुछ भी नहीं दिया मुझे, सपोज, ठीक है। तो मेरा ऑल इमोशन और बिकम सप्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे पता चल जाएगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तब भी मैं पापा से कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं देगा। तो ये ना देने वाला कैरेक्टर, मतलब ये कुछ ना पूछने वाला कैरेक्टर, या कुछ ना मांगने वाला जो कैरेक्टर मेरे पास आ गया, वो कहाँ से आया, वो पहले से आया, ठीक है, वो हो गया मेरा अनकॉन्शियस माइंड, वो चला गया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो ये अनकॉन्शियस माइंड होता है हम लोगों के बीच में। अब देखो मैं हैंडराइटिंग से दिखाता हूँ, अगर किसी के हैंडराइटिंग में सपोज इस तरह से एक नोट आ गया, जिसको हम नोट कहते हैं, ठीक है, अगर किसी के हैंडराइटिंग में नोट आ जाते हैं, अननेसेसरी अननेसेसरी ये नोट आ जाते हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में, सॉरी, अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा रहता है ये, ठीक है, जो डायरेक्टली मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली यही मेरा कैरेक्टर मेकिंग करेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मेरा अगर suppose इस तरह का अगर लोअर जोन हो जाते हैं, इस तरीके का अपर जोन भी हो सकता है, तो ये भी हम लोगों के अनकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा होता है, क्योंकि इसके दिल में भी बहुत कुछ होता है मांगने के लिए, लेकिन इसको नहीं मिला, ठीक है। अनसेटिस्फेक्शन इंडिकेट करता है, एक्सजरेशन जिसको हम ग्राफोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अगर किसी का लेफ्ट मार्जिन, जैसे मैंने कहा, कॉन्शियस माइंड में, सॉरी, अनकॉन्शियस प्रीकॉन्शियस माइंड में किसी का लेफ्ट मार्जिन बहुत करीब से शुरू होता है, एंड ये हम लोगों का जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, इसका लेफ्ट मार्जिन ना बहुत ज्यादा दूर से शुरू होता है, वाइट जिसको हम कहते हैं। अगर किसी का वाइट लेफ्ट मार्जिन हो, तो दैट मीन्स उसका पास्ट एक्सपीरियंस वो भूलने की कोशिश करता है। अंडरस्टूड? वो चला जाता है हम लोगों के अनकॉन्शियस माइंड में, एंड वो इनडायरेक्टली उसको डिस्टर्ब करेगा। अंडरस्टूड? जो भी इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करेगा वो अनकॉन्शियस से आएगा। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम किसी का भी हो सकता है। कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, शी वाज रेप्ड वंस एट द एज ऑफ 10, by his by her
टीचर और समथिंग नियर नेबर समथिंग लाइक दैट। सो उसको ये याद है, लेकिन उसके बाद ये उसने किसी से नहीं कह पाया। उसके जो पेरेंट्स थे उससे भी नहीं कह पाया। लेकिन उसका कैरेक्टर आज टोटल बदल गया। वो पहले बहुत हँस-खेल रहा था, उसका माँ बोल रहे थे कि बहुत मेरा बेटी बहुत हँस-खेल रहता था जब छोटे थे। लेकिन अभी वो किसी के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करता। सबसे दूर-दूर रहता है, करीब जाने के लिए डरता है। तो ऑटोमेटिकली ये आ गया उसका कैरेक्टर, ये नेचर उसके दिल में मेकिंग हो गया ये कैरेक्टर, ठीक है? ये किसका इफ़ेक्ट है? उसके अनकॉन्शियस माइंड वाला जो प्रॉब्लम है। एंड बहुत कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है हम लोगों को, जो हम लोगों के साथ हो चुका है लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं है, ठीक है? अभी तक याद भी नहीं है, मैं याद कर भी नहीं सकता, लेकिन उससे मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट मिल गया मुझे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, ये हो गया हम लोगों का अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड प्रीकॉन्शियस कॉन्शियस वाला स्टेट। एंड नेक्स्ट समृद्धि मैम, कैन यू टेल मी नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का जो डायनामिक मॉडल होता है और स्ट्रक्चरल मॉडल, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। Yes, sure. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। করে দিয়ে যেত আর ওই জমিগুলো ভালো ধান চাষ হতো সেই জমিগুলোতেই ওরা মাটি উপরে দিয়ে যেত যে তোমাকে এখানে নীল চাষ করতে হবে এইবার সেই চাষি পরের দিন ওই কুটি বাড়িতে যাবে বা আগে যে একটু অনুনয় করবে তার পরিবারে যদি আরো লোকজন যায় ওখানে Moving forward, we will discuss another very important and interesting concept of Freud, that is dynamic or structural model. Here we will come across a few new terms which I will explain in detail. Freud later revised these three levels of personality which we discussed and introduced three basic structures in the anatomy of personality. First one is id, second is ego, and third is superego. Ego का मतलब है अहम, that is self, and superego is paraham. It develops from the time of birth, which and this works daily on pleasure principle and our instinct gratification of needs. Ego develops at the age of 3 years and it works on reality concepts, and superego starts developing from the age of 5 to 6 years and this works mainly on moral values. So what is ego? फ्रॉइड का मानना है हमारे अंदर सब तरह के थॉट्स आते हैं, कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं, कुछ बुरे आते हैं। तो इन थॉट्स को हमें बैलेंस करना होता है। तो ये तीनों रीजन्स में दैट इज ईड, ईगो एंड सुपर ईगो में एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है। तो ईद का क्या रोल है? उसका एक ही काम है, हमारे डिजायर्स को सेटिस्फाई करना। जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, मतलब तब आप ईद द्वारा संचालित हो रहे हो। ईद को सिर्फ इच्छा पूरी करने से ही मतलब है, इसीलिए उसे तरीकों या कोई मेथड से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ईद इवल मेथड्स भी यूज करता है, रादर यूज करवाता है। तो ईद बुरा काम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को बॉल चाहिए पर उसके पास पैसे नहीं है, तो बच्चे को बॉल का डिजायर है पर खरीदने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ईद उस बच्चे से क्या कहेगा? कहेगा कोई बात नहीं बेटा, तू उस बॉल को चुरा ले, अपने फ्रेंड से चुरा ले, शॉप से चुरा ले, कहीं से भी तू चुरा ले। तो क्योंकि ईद को आपसे बुरा काम भी करवा सकता है और उसको तरीकों से कोई मतलब नहीं है। तो ईद tries to fulfill our immediate gratification of our needs और ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब खाओ पियो और ऐश करो। ठीक ईद का उल्टा है। So can you go to the next speaker please?
Just opposite of id is our super ego. सुपर ईगो डिजायर्स को पूरा करने में जोर नहीं देता है. सुपर ईगो आपको कभी भी चोरी करने नहीं देगा. Rather, it will tell you go by the ethical values, the moral values taught by parents and seniors. So, as shown in the picture, you can see Id is considered to be devil, and on the other side, super ego is considered to be as an angel figure. So, according to Freud, there's a constant conflict between id and super ego. If I give an example, গরুর গাড়ি তো suppose চলে आप ওই competitive তক্তপাড়ার exam ভেতরে के लिए prepare हो ওখানে रहे তো हो এখনো তো ধান और পান आपको जॉब भी चाहिए, ধান পান নিয়ে যায় এখনো তো গরুর গাড়ি চলে लेकिन आपको कुछ ধানের বস্তা questions ধান के কেটে ধান answers নিয়ে नहीं যাচ্ছে এখনো তো मालूम চলে है और आपको चीटिंग करने का मौका भी নবরূপটা বলেন আপনি ওই एग्जाम से क्या তাপস बोलेगा দাদের পাড়া বইকারের ভেতরে এখনো बिकॉज আছে आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने पर सुपर ईगो तभी सुपर ईगो आपके मन में ये विचार लाएगा चीटिंग मत करो क्योंकि उसे वैल्यू से मतलब है एंड सुपर ईगो को डिजायर फुलफिलमेंट से कोई मतलब नहीं. तो आप किसकी बात सुनोगे? अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे माइंड में तीसरा स्ट्रक्चर है दैट इज ईगो, मतलब सेल्फ आई. सो ईगो रियलिटी पे काम करता है. In reality, we know all our desires cannot be fulfilled. So ego acts as a referee, it acts as a policeman and balances between our ideal values and desires. So it maintains a balance between id and superego. For example, कोई पर्सन है जो कि डाइट पे है, अगर उसे चॉकलेट खाने का दिल करे तो ईद उसे क्या बताएगा? चुपचाप पूरा वो चॉकलेट खा लो. तभी सुपर ईगो उसे याद दिलवाएगा कि आप तो डाइट पे हो, can't do this. On the other hand, ego will tell to have one piece or one slice of chocolate and do some workout, jogging, the next morning. So id is considered to be evil, ego is considered to be human, and super ego is saint. I just missed one point. Let me go back to super ego. Super ego is also responsible for guilt feeling. Like when it fails to follow the social behavior and norms, it creates a guilt feel within us. So this was all about our ego and super ego. What do you say? Thank you, ma'am. Thank you. अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का आईडी ईगो सुपर ईगो. आईडी ईगो सुपर ईगो से हम लोगों ने क्या जाना अब तक? एक चीज आपने नोटिस किया, ये हम लोगों का बैलेंस्ड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे जीवन का. आप देखो, कोई भी हमारे दिल में बहुत कुछ इच्छा होता है. कभी कभी हमारे दिल में, सबके दिल में हम लोग छुपाते हैं, बहुत कुछ बुरा इच्छा भी होता है और बहुत कुछ अच्छा इच्छा भी होता है. ठीक है, तो ये जो बुरा इच्छा होता है, ये आप कोई कर लेता है बुरा, तो वो हो जाते हैं उसका आईडी, दैट मींस इंस्टिंक्चुअल ड्राइव जो होता है, बहुत शक्तिशाली है ना, बहुत पावरफुल है उसका एज, जो बुरा कर लेता है. लेकिन जिसका सुपर ईगो बहुत हाई है, तो वो बुरा इच्छा जो है वो आने ही नहीं देना चाहता है. ठीक है, जैसे मैं आपको हैंडराइटिंग से भी समझा देता हूँ. एक सेकंड. This is very interesting part. I must let you know. सबसे पहले आप देखो, ये प्रैक्टिकली आप देखो. सपोज ALY, ठीक है, तो ये ALY, इसमें देखो ये हो गया आपका मिडिल वाला पोर्शन, एंड ये अपर वाला एंड ये लोअर वाला. ठीक है,
तो सपोज कोई लिख रहा है ALY, ठीक है, तो इसका अपर वाला पोर्शन बहुत ज्यादा एंड मिडिल नीचे वाला पोर्शन बहुत छोटा, एंड कोई ऐसा भी लिख सकता है isn't it? तो इसमें भी आप देखो, आप पहले इसमें देखो, अगर कोई भी हैंडराइटिंग का, एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट को हर वक्त यही कहता हूँ कि किसी का भी ये जो जोन, इसको हम हैंडराइटिंग में जोन कहते हैं, ये जोन ओनली 5 to 10 सेकंड में आपको देखना है। किसी का भी कोई भी हैंडराइटिंग आप 5 सेकंड में ही आपको देखना है। जो भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई मैं अपने कोई साधु के बेस में आपके सामने आता हूँ, ठीक है, साधु के बेस में आपके सामने आता हूँ, तो आप तो मुझे साधु ही बोलोगे ना। तो ये मेरा प्राइमरी रिकॉग्नाइजेशन है कि ये एक आदमी आया है जिसके बहुत ज्यादा रुद्राक्ष का माला पहना है, बहुत कुछ पहना है, तो उसको साधु ही बुलाएंगे, isn't it? तो सिमिलर वे में दैट इज आवर जोन, कि किसके दिल में क्या है। सबसे पहले कोई भी हैंडराइटिंग लेके उसके 5 सेकंड में उसका जोन देखो कहाँ पे है, ठीक है, उसका दिल कहाँ पे है। मतलब अब देखो, ये अपर जोन, किसी का भी अगर अपर जोन अगर इतना बड़ा है तो उसका सुपर ईगो मतलब बहुत पावरफुल है, तो उसके दिल में अगर कोई भी बुरा इच्छा आएगा भी, तो उसके सुपर ईगो के पास वो ताकत है उस बुरा इच्छा को फाइट करने का। एंड ये ईगो वाला जो पोर्शन होता है ना, ये मिडिल वाला पोर्शन, ये हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। मतलब ये होता है हम लोगों का प्रेजेंट एनवायरनमेंट, तो मैं किसको वोट दूंगा, अपर पर्सन को या लोअर पर्सन। तो ईगो कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, आप यहाँ पे देखिएगा, अपर पर्सन का पावर बहुत ज्यादा है एंड लोअर पर्सन का पावर बहुत कम है, तो अपर वाला को सपोर्ट करेगा ईगो, isn't it? सिमिलर वे में यहाँ पे देखो, ये लोअर वाला पोर्शन, यहाँ पे अपर वाला पोर्शन छोटा है ना, एंड ये लोअर वाला पोर्शन बहुत बड़ा। तो ये लोअर वाला पोर्शन अगर बहुत बड़ा होगा तो ये ईगो को किसको सपोर्ट करेगा, हमेशा बुराई जो उसके दिल में आएगा उसको ही सपोर्ट करेगा, एंड ये उसके लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ईगो, आईडी, सुपर ईगो। लेकिन इसको हम लेटर से कैसे समझेंगे, तो मैं थोड़ा एक लेटर को आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, आप देख लीजिए। सपोज इन केस ऑफ ईगो, देखिए यहाँ पे इन ईगो कौन से लेटर से जान सकते हैं हम, लोअर जोन का कोई भी लेटर, जो लेटर लोअर में आते हैं। सपोज इन केस ऑफ जी से हम ईगो वाला पोर्शन क्या जान सकते हैं, जी से हम जान सकते हैं किसी का सेक्सुअल ड्राइव, मटेरियल ड्राइव, दैट मींस उसका लग्जरी, किस तरह का लग्जरी पसंद करता है वो, किस तरह का गोल सेटिंग है उसका, कहाँ पे है उसका गोल टारगेट, एंड उसका कोई ऐसा भी काम करता है कि ओनली फॉर सर्टिफिकेट के लिए वो पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसा भी है। तो ये सर्टिफिकेट वाला पोर्शन ये जी में आपको दिखाई देगा, अंडरस्टूड। लेकिन इन केस ऑफ वाई में क्या होगा, आपका मॉनिटरी, और दैट मींस फाइनेंशियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल नेचर कैसा है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, अंडरस्टूड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। एंड इसके बाद आप देखिए लेटर जे में अगर आप देखोगे, लेटर जे भी लोअर जोन में आता है, एंड ये क्या करता है, आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन, आपका अब सबका पर्सनल सेटिस्फेक्शन दिखाएगा ये लेटर जे। दैट मींस सपोज I am earning 1 lakh rupees per month, and I am giving all my earning, I am sacrificing all my earning to my wife or my child or my father, mother, every person, but I am not purchasing anything for myself. Okay, so my Y can be satisfied. Y means financial area, that can be satisfied, but my J is not satisfied here. J indicate your personal satisfaction. Understood all of you? So in case of ये J हो गया, in case of letter P, suppose अब देखो लेटर P क्या इंडिकेट करते हैं, आपका फिजिकल पावर,
आपके कमाल, एक सवाल पूछते रहे, सवाल Yes, पूछ सकती हूँ? yes, सॉरी yes, टू yes. इंटरप्ट, Yes, नहीं तो ma'am, फिर ये sure. पॉइंट आगे चला जाएगा, इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। Sure, ma'am, sure. जैसा कि आपने कहा कि J is your personal satisfaction and it will be seen in the letter J, तो in that case the letter J का lower zone loop will be squeezed, right? Lower zone, yes, ma'am. Lower zone loop will be just like that. कोई J इस तरीके से भी लिख सकता है, इस तरीके से भी लिख सकता है, लेकिन ये मिडिल जोन वाला पोर्शन जो Y में होता है, जैसा ये मॉनिटरी इंडिकेट करता है ऊपर से ओपन है, ये टोटल 100% ऐसा है, क्लोज्ड है। तो ये हमारा बॉडी इंडिकेट करता है, सेक्सुअल नेचर इंडिकेट करता है, ठीक है। जे में भी तो जे में ये कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली एक एक्सटेंसर दे रहा हूँ एंड फ्लेक्सर दे के नीचे आ रहा हूँ, इजंट इट। तो ये मिडिल जोन से कुछ भी, जे का मतलब क्या होता है, ये मिडिल जोन से कुछ भी हम लोअर जोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस अपने मिडिल जोन रिलेटेड इश्यूज हम अपने लोअर जोन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाई नहीं है तो मॉनिटरी नहीं हो सकता, जी नहीं है तो सेक्सुअल नहीं हो सकता। तो ये जे मींस हम लोगों को अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर मैं ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना चाहूंगा। That means we do not see the loops, the lower zone loops, but the upper portion of the middle zone portion of the letter, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. And कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैम आपके पास, आप बता सकते हो मैम, we can learn from it. वो बाद में, पहले आप पूरा कर लीजिए। सॉरी, ये जरा मुझे एक पॉइंट ऐसा लगा कि बाद में निकल जाएगा, इसलिए बीच में कहा। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट मैं लेटर पी की बात कर रहा हूँ। पी में हम क्या जान पाएंगे, हम लोगों का फिजिकल पावर कैसा है। फिजिकल पावर दैट मींस हमारा बॉडी पावर। एंड लेटर सपोज इन केस ऑफ लेटर क्यू से हम क्या जान पाएंगे, क्यू ये सब कुछ, कोई भी लोअर जोन होता है हम लोगों का एबिलिटी इंडिकेट करता है, ठीक है। हम अपने आईडी को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेटर क्यू क्या इंडिकेट करेगा, हम लोगों का एग्रेसिवनेस, ठीक है। हम लोगों का अग्रेसिवनेस इन वेयर, इन आवर प्रोफेशनल एरिया, ठीक है। प्रोफेशनल एरिया में हम लोग कितना एग्रेसिव है। एक चीज देखिए, एग्रेसिवनेस तो कोई कहीं पर भी कभी अच्छा हो सकता है, कभी बुरा हो सकता है। इफ आई शो माई एग्रेसिवनेस विथ माई वाइफ दैट विल बी बैड, बट इफ आई शो माई एग्रेसिवनेस इन माई प्रोफेशन दैट विल बी गुड, दैट विल हेल्प मी टू अर्न सम मनी, इजंट इट। तो इन केस ऑफ लेटर कोई ऐसा भी लिखता है, लेटर जे को भी लोअर जोन में ले आते हैं, ठीक है। लेटर जे को भी इस तरीके से लोअर जोन में ले आते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल होता है, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट, एंड कोई ऐसा भी हो सकता है लेटर एफ भी लोअर जोन में आ जाते हैं। तो लेटर एफ देखिए, तो ये लोअर जोन वाला पोर्शन ये दिखाता है हम लोगों का लेटर एफ का एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, इसके पास क्या एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है। तो मैंने यहाँ पे टोटल ये 6 लेटर को मैंने दिखाया आप सबको। तो ये 6 लेटर ही हम लोगों का एबिलिटी इंडिकेट करता है। एक तरह का लेटर एक तरीका का एबिलिटी इंडिकेट करेगा, अंडरस्टूड। एंड इन केस ऑफ सपोज देखो मिडिल जोन लेटर, मिडिल जोन दैट मींस ईगो वाला पार्ट, ईगो वाला पार्ट से ऑल मिडिल जोन लेटर, सपोज ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जेड, ये सब कुछ इंडिकेट हो जाएगा आपका मिडिल जोन लेटर। एंड मिडिल जोन इंडिकेट करता है हम लोगों का प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट लाइफ मींस टोटल हम लोगों का सोशल लाइफ, टोटल सोशल लाइफ, मेरा दोस्त, मेरे पापा मम्मी, आप सब, ये सब आ जाएगा हम लोगों का सोशल लाइफ में। एंड ऑब्वियसली आई मस्ट लेट यू नो, ये जैसे ये सेशन शुरू होने से पहले मैं बात कर रहा था स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। तो स्पिरिचुअल के हिसाब से भी ये जोन इंडिकेट होता है, ठीक है। जैसे अपर जोन में क्या रहता है, अपर जोन में कौन से लेटर रहते हैं, दैट इज सुपर ईगो एरिया, दैट इज लेटर बी डी एफ एच के एल टी, ये सब कुछ अपर जोन में चला जाता है। तो ये सब लेटर हम लोगों का स्पिरिचुअल नेचर इंडिकेट करता है ऑब्वियसली। एंड हम लोग का सुपर ईगो दैट मींस हम लोग का इंटेलेक्चुअल एरिया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एरिया में हम लोग कैसे है, कितना नॉलेज है हम लोगों का, आईक्यू लेवल, ये सब कुछ हम लोगों का ये अपर वाला पोर्शन से इंडिकेट हो सकता है। एंड यहाँ से ही
आप इसको ना स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप इसको जाना चाहते हो तो इसको आप हेवन कह सकते हो। जैसे अभी संप्रीति मैम ने कहा कि एंजल की बात किया, तो ये होता है हम लोगों का हेवन वाला पोर्शन, ठीक है। एंड प्रेजेंट मतलब जो ईगो वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया, मिडिल जोन, दैट इंडिकेट्स आवर प्रेजेंट सिचुएशन, सोशल लाइफ। और हेवन के नीचे एक होता है हेवन, दूसरा होता है हेल। हेल होता है हम लोगों का जो नीचे वाला लोअर जोन, एंड मिडिल में आता है क्या, हेल, हेवन, और मिडिल में क्या आता है, जो अर्थ आएगा ना हमारा, धरती कहते हैं, धरती। तो ये आता है हम लोगों का मिडिल में, ठीक है। तो हायर कॉन्शियसनेस, आइडिया, इंटेलिजेंसी, ये सब कुछ आ जाते हैं आपका अपर पोर्शन में। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड जैसे मैंने एक्चुअली ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे अनुपमा मैम ने भी बहुत बार मुझे कहा है, मैं बहुत जल्दी लास्ट में फिनिश करना चाहता हूँ, कोई भी टॉपिक ले लेता हूँ तो 2-3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करने के लिए अनुपमा मैम ने मुझे कहा था। तो इस टॉपिक को मैंने ऐसा ही लिया है कि 2-3 दिन मुझे लग जाएगा ये कंप्लीट करने के लिए। यस मैम, आप थोड़ा इनपुट दीजिए अगर आप देना चाहते हो मैम। कमाल, आप बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड पेयरिंग विद संप्रति रॉय ना, आई थिंक शी इज संप्रति रॉय, राइट? Sampriti Dey actually. सॉरी It's okay. और आपने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से ग्राफोलॉजी और साइकोलॉजी को कंबाइन किया है। इसी तरह से आप आगे करते रहो। और आज का तो सुपरलेटिव था आज का सेशन, सचमुच बहुत सुंदर था। दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो इस पे मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन इतना ही रहेगा, एंड नेक्स्ट डे हम डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो कुछ भी क्वेश्चन हो मुझे कह सकते हो यहाँ पे, और कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट डे हम डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बात करूंगा मैं। डिफेंस मैकेनिज्म विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल, ठीक है? ये सिगमंड फ्रॉइड का मेन पोर्शन होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब कुछ। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? थोड़ा जे फिर से समझाइए ना तमाल, आई डिडंट अंडरस्टैंड। जी वाई आई अंडरस्टूड, जे व्हाट यू सेड ना। ओके, लेट मी। लेटर जी में क्या होता है आप देखो, लेटर जी में आ जाता है सपोज कोई भी लेटर, ये ओ जो होता है ना, ये ओ होता है हम लोगों का बॉडी। अब पकड़ लो, अब एज्यूम कर लो ये ओ होता है हम लोगों का बॉडी, ठीक है? एंड लेटर ओ से कोई भी एक टेल निकल दो, ये टेल आ जाएगा आपका ए इंडिकेट करता है हम लोगों का होमली नेचर, होमली अपीयरेंस, ठीक है? क्योंकि बॉडी से हम बाहर निकल गए ना, लेकिन बाहर निकल के बहुत दूर नहीं गए, हम अपने घर से नहीं गए, ठीक है? बाहर निकल के आप अपना होम लाइफ यूज कर सकते हो, लेकिन हम होम में ही है, लेकिन बाहर भी नहीं जा रहे, मतलब सोशल लाइफ में नहीं जा रहे, एंड ये नीचे आ रहा है, ठीक है? इसी टेल को अगर हम नीचे ले आते हैं, तो इसी टेल को अगर हम नीचे ले आते हैं तो नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, लोअर जोन, इजंट इट? ये लोअर जोन इंडिकेट करेगा जो हम बाहर नहीं गए, तो हम लोग घर में ही है, तो हम लोगों का एबिलिटी इंडिकेट करता है, ये सेक्सुअल एबिलिटी हम लोगों का इंडिकेट करता है, जो हम बाहर नहीं गए, मतलब सोशल लाइफ में नहीं जा रहे। लेकिन अब वाई में भी देखो, वाई में होता है हम लोगों का फाइनेंशियल एबिलिटी, ठीक है? फाइनेंशियल लाइफ हम लोग इंडिकेट करते हैं। लेकिन एंड जे में क्या होता है, सपोज इन केस ऑफ हम आई लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आई लिख रहे हैं, तो आई क्या डिनोट करेगा? आई डिनोट करेगा हम लोगों का सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं, सपोज आप देखो यहाँ पे कैसे ये आई बनता है, आई बन रहा है, पहले ऊपर जा रहा है एंड नीचे आ रहा है, सो दैट मीन्स एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर। सो आई एम गिविंग समथिंग, आई एम रिसीविंग समथिंग इन सोशल लाइफ। इज इट क्लियर टिल नाउ? तो आई एम गिविंग समथिंग एंड रिसीविंग समथिंग फ्रॉम सोशल लाइफ, क्योंकि वो सोशल वाला एरिया ही है, ओके? सपोज मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा मेंटल एबिलिटी नहीं चाहिए मेरे दोस्तों से गॉसिप करने के लिए, ठीक है? तो वो लेटर आई से भी हम देख सकते हैं, वो सोशल लाइफ में आ जाएगा। लेकिन उस सोशल लाइफ को मैं अपने ये नीचे ले आ रहा हूँ,
ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर्सनली हाउ आई एम सेटिस्फाइड, अंडरस्टूड, या फिर फाइनेंशियल नहीं आएगा, ठीक है, पर्सनल लाइफ को मैं कैसे सेटिस्फाई करना चाहता हूँ सबसे, या फिर फाइनेंशियल सेक्सुअल ये सब नहीं आएगा, लेकिन अपना पर्सनल कैपेबिलिटी। Okay. Thank you. Yes, now understood. ठीक है, Wonderful session today. ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इफ यू have any question, Thank you everyone. Bye. Thank you, Sampriti ma'am. Also, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Sampriti ma'am. Thank you, Thank you, sir. Tamal sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.